में हमारी एनएसएस यूनिट को वन ऑफ द एक्टिव और बेस्ट यूनिट माना जाता है। खुशी हुई कि आप लोगों ने इतने सारे काम किए। I'd like to welcome each and every one of you to this special event. We are gathered here to celebrate the spirit of service, unity, and social responsibility through NSS. Before we dive into our activities, let's make this event enthusiastic with a melodious NSS beat, reminding us of our commitment to serve our society with enthusiasm and dedication. So without any further ado, let's all join in and sing along to the Lakshya Geet. ऑफिस बेरर से नहीं चलती है या पोस्ट होल्डर से नहीं चलती है। जितना काम ऑफिस बेरर करते हैं उससे भी कहीं ज्यादा हमारे वॉलंटियर्स करते हैं। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि उनको जो उन्होंने मेहनत किया है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और कम से कम हमारे जो ऑफिस बेरर हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो ऐसा नहीं सोचते कि सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों को क्रेज मिलना चाहिए। आज हमारी एनएसएस जहां है उसमें आप सबका बराबर का योगदान है, तो सबकी हिस्सेदारी बराबर है, तो सबको जो उसका श्रेय है वो भी बराबर मिलना चाहिए। तो इसी कड़ी में मैं अपने पहले वॉलंटियर को बुलाता हूं। उससे पहले मैं इंतजाम सर और सीमा मैम का भी थैंक यू करता हूं और मंच पर आमंत्रित करता हूं। वॉलंटियर हमारे जो है प्रणव, इनका अब ये वॉलंटियर हमारे प्रकांड राज एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है जैसा इनका नाम है वैसा एनएसएस में इनका काम भी रहे आगे आने वाले दिनों में। It is to lose yourself in the service of others. Oh, that is why NSS motto is not me but you? Right. If you want to touch the past, touch a rock. If you want to touch the present, touch a flower. If you want to touch the future, touch a life. NSS, National Service Scheme, a program designed to foster the value of social responsibility, leadership, and community engagement in students. It is a voluntary service program that operates under the Ministry of Youth Affairs and Sports in India, aimed at instilling a sense of civic consciousness and active citizenship among the youth. We have our teachers, Seema ma'am, Aruna ma'am, esteemed sir. They are more than our friends. You can say something like a support system who is always available every time, day and night. They came for events, campaigns, rides. Even on Sundays, also they are giving the best to NSS. Or I think the words aren't enough to praise about them. They are just like light to a darkness. So, why have we gathered here today? It is with great pleasure and a sense of pride that we gather here today to celebrate the triumph of NSS unit and listen to that motivating men whose journey of aspiration became an inspiration for all. We celebrate the significant milestone in our journey, the successful completion of 1 year under the leadership of our esteemed principal, Shri Arun Kumar Atri sir. Under his guidance, At this moment,
We believe that a picture is worth 1,000 words, and what better way to capture, immortalize our fondest memories than through a beautifully crafted photo frame. This photo frame symbolizes not only our appreciation for our principal sir, but also serves as a reminder of special moments. So without any further ado, I would like to invite Seema ma'am on Bandhani sir to present a token of gratitude and admiration. Thank you, sir and ma'am. Now, again, I would like to invite our NSS President Dipendra Verma to reflect the achievements, challenges, and milestones of NSS of the past 6 months through its semi-annual report. ही नहीं मिलती राहों की मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राहों की, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से मैंने कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से मैंने कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका उठाना पड़ता है। मैं भी उसी चिड़िया की प्रकार हमारे ने तिनके की तरह मेहनत करके छोटी छोटी कोशिशों से आज इस मुकाम पर पहुंची है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारी एनएसएस यूनिट को वन ऑफ द एक्टिव और बेस्ट यूनिट माना जाता है। तो आप सबका रहा है, उसमें हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अरुणा मैम, सीमा मैम और एहतसाम सर का, कि आप लोग हमेशा हर टाइम हम सबके लिए अवेलेबल रहते हैं। कहीं भी हमें जाना हो, आप हर टाइम हमें मोटिवेट करते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आप सबका सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अरुणा मैम के साथ बात करूंगा। सीमा मैम भी हमारे साथ हैं। सीमा मैम का भी बहुत बड़ा योगदान हमारी यूनिट में हमेशा रहता है। साथ में एहतसाम सर कल आप नहीं थे यहाँ पर, और सेमिनार बुक कराने के लिए हमें परमिशन लेनी होती है आपकी सर। और आपसे भी पहले पता चला कि आपको नहीं पता था कि आप यहाँ है या नहीं है, तो हमने उसमें आप सर की साइड चाहिए होती, प्रोग्राम ऑफिसर या को प्रोग्राम ऑफिसर। हमने सर को कॉल किया, वेट करो मैं आता हूँ, साइन करूंगा और सेमिनार बुक करेंगे। और कल सर कॉलेज आए, कि सर ने तुरंत के रूप में हमारे साथ चलता है, खाबों की उड़ान में जज्बा साथ चलता है, हार न मानो कभी, ऐसा हमारे नेगी सर से हमें उत्साह मिलता है। तो एक बार जोर ये सारी बातें, ये सब कुछ अधूरा है, क्योंकि जिस शख्सियत का मैं नाम लेने जा रहा हूं, उनके बिना ये कुछ भी संभव या पॉसिबल नहीं है। तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगा कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों की जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। और इस कॉलेज के लिए सूर्य की भांति ऊर्जा प्रदान करने वाले, रोशनी प्रदान करने वाले, हम सभी को मोटिवेट करने वाले हमारे प्रिंसिपल सर आपने कहा कि हमने ऐसा क्या किया कि आप हमें बुला रहे हैं। सर बेसिकली मैं इतने कॉन्फिडेंस में रहता हूं कि जब भी मैं सर के पास जाऊंगा, सर मना नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि सर बहुत स्ट्रिक्ट है, सर अच्छे कामों के लिए स्ट्रिक्ट नहीं है, आप लोग जानिए। सर अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं, जब मैं अपना बजट लेके गया तो मैं परंतु बजट बढ़ा के वहीं पर पास किया। ये एनएसएस के लिए भी अचीवमेंट है। पिछले कुछ महीनों में हमने जो अचीवमेंट्स की है वो मैं अब रिपोर्ट प्रेजेंट करूंगा,
और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सामने आ जाएं। सर जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस टेन्योर का स्टार्ट हुआ वो 1 सितंबर 2023 से शुरुआत हुआ, जिसमें पर्सनल और 70 के अप्रॉक्स हमारे वॉलंटियर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दूसरा इंटरव्यू सर हमारा हुआ, पर्सनल इंटरव्यू वो हुआ 16 सितंबर को कॉलेज ग्राउंड में, और जिसमें हमारे इस बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अचीवमेंट है पोजीशन हासिल किया, जो कहीं ना कहीं सर इसके बाद मॉर्निंग कॉलेज के साथ हमने कोलैब करके 1 घंटा का स्वच्छता ही सेवा कैंपेन किया, जिसमें आपने भी आकर हम सबका उत्साह बढ़ाया। थैंक यू सो मच सर, ये प्रोग्राम भी बहुत ही सक्सेसफुल रहा। मेरी माटी मेरा देश में हमारे 80 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया, जो कि कहीं ना कहीं एक गौरवान्वित होने का विषय है, और वहां पर मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। तो एक बार जोरदार तालियां। इसमें हमारे प्रधानमंत्री, देश के सभी मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया। एक अच्छा अनुभव हमारे वॉलंटियर्स को मिला कि हमारे देश की मिनिस्ट्रीज और इतने बड़े इवेंट्स किस तरह मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, ये हमारे वॉलंटियर्स को सीखने का मौका मिला। इसके बाद सर हमने 1 हफ्ते का स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम किया। इसमें डे 1 में हमने कॉलेज प्रेमिसेस में साफ सफाई का अभियान चलाया। आपके योगदान से कॉलेज ऑलरेडी साफ रहता है, बहुत मैनेज रहता है सर, लेकिन हमने प्रयास किया कि एक मैसेज साफ सफाई का सारे वॉलंटियर्स के बीच में, सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचाया जाए, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। इसके बाद डे 2 में सर हमने सतपुरा झील कॉम्प्लेक्स में सफाई अभियान चलाया, जो कि बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा, और वहां पर झील के अंदर सब जितने भी प्लास्टिक्स थे और जितनी गंदगी थी उसको साफ किया, और वो साफ रहे इसका आसपास में मैसेज दिया। सर तीसरे डे में हमने स्किट कंपटीशन किया क्लीननेस अवेयरनेस के लिए। हमारे वॉलंटियर्स ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को बताया नाटक के माध्यम से कि कैसे हम साफ सफाई रख सकते हैं, हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। हमारी यूनिट ये मानकर चलती है कि हम सोशल वेलफेयर के साथ साथ अपने वॉलंटियर्स का भी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उस पर भी काम करें। तो स्वच्छता पर हमने स्पीच कंपटीशन रखी, साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे वॉलंटियर्स प्राइज जीत सके, इसके लिए हमने प्रेजेंटेशन कंपटीशन भी कराया, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। डे 5 में सर हमने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो कि आपके मार्गदर्शन में हमने चिराग दिल्ली और शेख सराय में पैम्पलेट बांटे, और कॉलेज के बाहर जो ये गंदगी रहती है इसके खिलाफ हमने लोगों को अवेयर किया कि ये महाविद्यालय परिसर है। हमारे सर, हाँ यहाँ मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा सर, ये पूरी साफ सफाई कराई, तो सर कॉलेज के अंदर नहीं, कॉलेज के बाहर भी कॉलेज के लिए काम करते हैं। इसके बाद सर केएसडी इंडिया के साथ सिविल सर्विसेज में हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स इंटरेस्टेड रहते हैं, तो हमने एक कोलैबोरेशन में प्रोग्राम किया, मेंटरशिप प्रोग्राम, कि हम सिविल सर्विसेज की कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे हमें कॉलेज लाइफ में उसकी तैयारी करनी चाहिए, इन सब को लेकर हमने प्रोग्राम किया, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इसके बाद सर अगला मिनिस्ट्री का इवेंट हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप, जिसमें हमारे पैरा ओलंपिक की चेयरमैन मल्लिका नड्डा मैम भी रही, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। सर इस इवेंट में सिर्फ भगत सिंह कॉलेज के वॉलंटियर्स थे एनएसएस के, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को सक्सेसफुली मैनेज किया एज अ मैनेजमेंट कंपनी। वहां पर लास्ट में बताया गया कि आपके वॉलंटियर्स ने बहुत ही अच्छा मैनेज किया, और ये इवेंट मिनिस्ट्री का इवेंट एक भगत सिंह यूनियन कॉलेज के बच्चों ने इतना अच्छा मैनेज किया। तो ये सर कहीं ना कहीं आपकी गाइडेंस है, जिसकी बदौलत हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। इसके बाद सर हमने विंटर में क्लॉथ कलेक्शन ड्राइव किया और क्लॉथ डोनेशन ड्राइव किया, और सर जाकर जो झोपड़पट्टी हमारे आसपास होती है और ओखला के पास सर वहां पर जाकर हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो कि बहुत ही सर एक हमने प्रोग्राम रखा जिसकी भी परमिशन आपने हमें तुरंत दे दी। साथ में हमने कॉलेज के अंदर बीए के साथ कोलैबोरेशन किया। हमने ये दिखाया कि जब हमारे सर का विजन पूरे इंडिया में भगत सिंह यूनियन कॉलेज को टॉप करने का है, तो हम सबका ये जिम्मेदारी का हम मिलकर भी काम करें। सर हमारे कॉलेज में क्या होता है, हम अलग अलग काम करते हैं। सर जो हमने पहला प्रोग्राम किया अवेयरनेस कैंपेन किया वोटिंग के रिगार्डिंग, हमारे महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी में वोटिंग इलेक्शन हो रहे थे, उस समय हमने कॉलेज में किया, और उसका इतना पॉजिटिव रिस्पांस रहा। हमने जो कैंडिडेट्स थे उनको जाके बताया, सारे कॉलेज के बच्चों को बताया कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, आप देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमें वोटिंग का राइट है, हमें वोट करना चाहिए, और शांतिपूर्ण आपके सामने रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे पारित करेंगे, जिससे हम बेस्ट यूनिट इसे बना सके। सर आज हमारी यूनिट इतनी सफल हुई है, उसमें सर कहीं ना कहीं आपका योगदान है और हमारे वॉलंटियर्स का योगदान है। उसके लिए सर हमारे कॉलेज में एनसीसी के पास तो अपना कॉर्नर है जहां खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स के पास या हमारे एनएसएस यूनिट के पास कोई रूम या कॉर्नर नहीं है। तो सर मैं
आपसे प्रस्ताव रखता हूं कि हमारे एनएसएस यूनिट को सर एक कॉर्नर मिलना चाहिए एनएसएस कॉर्नर के नाम से, जो कि एक प्रतिबिंब हो, एक स्थान हो जहां हम खड़े होकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। एनएसएस जो है उसका एक दस्ता जब हमारे देश में राष्ट्रीय परेड कर्तव्य पथ पर होती है तो वहां एनएसएस का भी एक दस्ता होता है। उसमें हर कॉलेज से वॉलंटियर पार्टिसिपेट करते हैं जिनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की आवश्यकता सर होगी। 2 साल पहले हमारे कॉलेज से साक्षी गंगवार ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद कोई भी वॉलंटियर सेलेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि क्या होता है सर कि जब नोटिस आती है तो हम चले जाते हैं, ऐसे हमारी कोई प्री प्रिपरेशन उसके लिए नहीं होती। सर मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि एनसीसी के साथ आप कोलैब करवा के हमारे कॉलेज में एक दस्ता बनवाएं और उसमें ट्रेनिंग उनको दी जाए, फिजिकली जो उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, और उसमें से जो बेस्ट वॉलंटियर्स हो वो वहां पार्टिसिपेट करें और हमारे कॉलेज के वॉलंटियर्स उस नेशनल परेड में पार्टिसिपेट करें। उसके लिए सर ये एक बहुत बड़ा योगदान आपका रहेगा अगर सर इसे आप पारित करते हैं। दूसरा सर हमारे कुछ प्रोग्राम ऑफिसर बैठे हुए हैं, तो सर हमने पहले भी पार्लियामेंट्री विजिट के लिए कहा था, क्योंकि हम एनएसएस यूनिट है, गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू सर हम लोग वर्क करते हैं, गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं, तो हमारे देश की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, कैसे वहां वो लोग देश के लिए किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे वो काम करते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं सर अगर हमें पार्लियामेंट्री विजिट अगर मिल जाए तो हमें एक ग्राउंड लेवल पर देखने को सर वो सामने से मिलेगी। इसके अलावा सर एनएसएस कैंप, बाकी कॉलेजेस एनएसएस कैंप के लिए जाते हैं सर हमारी यूनिट को, क्योंकि हम कॉलेज तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते सर, हमें सर बाहर जाना है, वहां की भी एक्सपीरियंस को लेना है। सर एनएसएस कैंप की सर एक प्रावधान जो है सर वो होना चाहिए कि हम बाहर जाएं। और बाद आपके अंदर क्या चेंज आया, आपके अंदर क्या बदलाव आया, तो ये सारी चीजें जो है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलती हैं और शहीद भगत सिंह कॉलेज इसके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म। तो आप बाकी बच्चे जो हैं वो इससे प्रेरणा लें कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो वाकई में ही बड़ा कंस्ट्रक्टिवली सोच रहे, और जो बाकी टीम है जो साथ में जितने भी लोग लगे हुए हैं, तो वो भी मुझे देख के लगा कि हाँ मैं इंटरेक्शन करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कितने लोग काम करने वाले हैं, कितने लोग नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने इतने सारे काम किए और जितने सारे एक्टिव लोग हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब चयन जो किया है कौन प्रेसिडेंट कौन वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए वो भी बहुत अच्छा है। तो इसके लिए मैं जिन लोगों ने भी ये चयन किया है, चाहे सीमा है, चाहे एहतिशाम है, चाहे निधि जी हैं, चाहे अरुणा है, तो आप सबको बधाई इस बात की कि आपने बहुत ही अच्छा चयन किया है और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बड़े अच्छे एनएसएस के आपने चुने। तो मैं देख रहा था कि काम आप लोगों ने जो किए हैं ओवर द ईयर, तो लास्ट 4 मंथ के काम, लास्ट 4 मंथ के तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए आपने। अभी तो रिसेंट जो पुलवामा वाले जो 14 फरवरी को है वो किया, और देखा मैंने कि आप उसमें क्लब में जाके पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि और बहुत अच्छी बात इसने जो बोली वो ये बोली कि जब आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के बड़े इंटरेस्टेड है सिविल सर्विसेज में जाने के, कितने लोग जाना चाहते हैं? तो जब आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, तो बताओ। हमारे देश के जो एजुकेशन सिस्टम एक काम वो देखिए, एजुकेशन सिस्टम को हम जो वो समाज को हम बताएंगे कि आप बड़ी हुई बातों पे ना जाए, आप जातिवाद पे ना जाए, आप उन नेताओं को छवि देखिए, वो आपके सामने वो कहना क्या चाहते हैं और वो क्या करते हैं।